Good morning student, welcome to maths class standard 4. Today we will continue our revision chapter 2 long and short. Long and short में मैंने previous period में board पे हमने sums किए थे, उसमें यहाँ पे जो भी sums हम कर रहे हैं वो maximum क्या आ रहा है, addition है या subtraction है. Long and short that means measurement होता है कि कितना measurement. तो यहाँ पे आपका एकदम concept clear हो इसलिए मैं digital class में को दिखा रही हूँ. वैसे भी हम रिवीजन कर रहे हैं, वन टाइम ये सारा रिपीट हो चुका है, बट आप फिर भी एकदम क्लियरली सारी चीजें समझ पाओ इसलिए मैं डिजिटल स्टार्ट किया है मैंने. तो डिजिटल क्लास में यहाँ पे पूरे पिक्चर के साथ सारी चीजें दिखाया गया, तो आप इजीली वो और भी अच्छी तरीके से ये चीजें आप समझ पाओ. तो यहाँ पे आपको था कि शॉर्टर लाइन ड्रॉ अनदर पिक्चर लाइक द गिवन पिक्चर एज पर द गिवन मेजरमेंट. ड्रॉ द राइट आर्म इन द गिवन पिक्चर 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म. तो यहाँ पे देखो आपकी स्केल इस टाइप की होती है, आपके पास होगी. तो यहाँ पे देखो ये उसका जो हैंड है वो कितने सेंटीमीटर का है, तो ये 0 से हम ऑलवेज जब भी मेजरमेंट स्टार्ट करें तो 0 से स्टार्ट करें, ना कि 1 से. आपकी स्केल में 1 से आप मेजरमेंट स्टार्ट करोगे ना तो आपका 1 सेंटीमीटर या तो ज्यादा होगा या कम होता जाएगा. यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 से स्टार्ट करेंगे तो उसका हैंड जो है वो 3 सेंटीमीटर का है. तो उसी के बेस पर मैं आपको प्ले करती हूँ वीडियो, आप देखते जाओ और आपको समझ में आएगा. ओके, स्टार्ट करती हूँ मैं. The picture is drawn here. Draw a cup 1 centimeter shorter than the given cup. Here is the cup 1 centimeter shorter than the given cup. Draw a broom half as long as the broom shown here. This is the required picture. Draw the hair double of the given hair. It is drawn like this. How tall have you grown? You have measured your height in the 3rd standard. Do you remember? Do you think you have grown taller? Can you tell me the difference between your present height and the height 1 year ago? 5 centimeters. That means your height this year is more than the height in the last year by 5 centimeters. Find whether your friends also have grown taller. Fill the information in the table as last height in centimeters, this year's height in centimeters, and the increase in the height. Now, let us learn about twice or double, thrice or 3 times, and 4 times. Double means 2 times. To find the double, we need to multiply the given number by 2. In the similar way, to find thrice or 3 times the number, we multiply the given number by 3, and to find the 4 times the number, multiply the number by 4. Now, let us try to understand half part, third part, fourth part, etc. Half means half part of one whole, that is, equal parts of a whole. Third part means third part of the whole, that is 3 equal parts of the whole. In ये
वन पार्ट है उसके पूरा होल पार्ट है, हाफ पार्ट ऑफ अ वन होल दैट इज टू इक्वल पार्ट ऑफ होल। तो जो भी चीज है उसके टू इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए वो। फिर थर्ड पार्ट ऑफ द होल दैट इज थ्री इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। तो थर्ड पार्ट ऑफ अ होल दैट इज थ्री इक्वल पार्ट ऑफ होल। तो जैसे आपके पास केक है, मैंने जैसे बताया फर्स्ट एग्जांपल दिया कि केक है तो आपके घर में दो ही आप है तो आप हाफ हाफ खाओगे, है ना। केक सबको पसंद होती है तो ना किसी को ज्यादा चढ़नी चाहिए ना किसी को कम चढ़नी चाहिए, तो एकदम इक्वल मेजरमेंट करके आप हाफ हाफ करके खाओगे। वैसे ही थ्री इक्वल पार्ट दैट मीन्स उसी केक के थ्री पार्ट करने पड़ेंगे आपको, तो वो थ्री भी इक्वल ही होना चाहिए, तो वो होगा थर्ड पार्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। In the same way, the fourth part means four equal parts of one whole. In short, if we want to find half of any number, divide that number by 2. Similarly, to find third part, divide the number by 3. Once, Jalpa read the list of tallest persons in the world, in which height of one of the person was 272 centimeters. His height is twice Jalpa's height. Now, we have to find Jalpa's height. The height of the tallest person is 272 centimeters, which is twice Jalpa's height. That means Jalpa's height is half the height of the tallest person. Therefore, to find Jalpa's height, we will have to divide the height of the tallest person by 2. On dividing 272 by 2, we get 136. That is, Jalpa's height is 136 centimeters. देखो लास्ट जो यहाँ पे आ रहा है आप लिखते जाना तो आपको इजीली वो चीजें पता होती जाएगी कि जब भी हमें किसी चीज का हाफ पार्ट करना है तो हमें डिवाइड बाय 2 करना है, किसी चीज का हमें 3 पार्ट करना है तो डिवाइड बाय 3 करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जल्पा's हाइट हाफ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट पर्सन। जल्पा की हाइट जो है वो हमें हाइट दी नहीं है, हमें वो फाइंड करनी है, बट कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि हाफ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट पर्सन। तो यहाँ पे जो टॉलेस्ट पर्सन जो है उसकी हाइट है 272, तो जब भी हमें किसी चीज का हाफ पार्ट करना है तो उसे डिवाइड बाय 2 करना है। इसलिए यहाँ पे दिखा है कि 272 डिवाइड बाय 2 करोगे, 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, फिर ये वाला 7 नीचे आएगा, फिर 2 की टेबल में 7 आता नहीं है बट 2 3 जा 6 आएगा, 7 माइनस 6 करोगे 1 बचेगा, देन लास्ट वाला 2 जो है उसे हम नीचे ले लेंगे तो 2 6 जा 12, तो 0 0 दैट मींस हमें जल्पा की हाइट मिल गई है। तो जल्पा की हाइट कितनी है? जल्पा's हाइट इज 136 सेंटीमीटर। तो जब भी हमें हाफ पार्ट करना होता है तो जो भी नंबर है उसे डिवाइड बाय 2 करना है, 3 पार्ट करना है तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। Centimeters. Now, find the height twice Jalpa's height. Twice means multiply that number by 2. That is, by multiplying Jalpa's height 136 by 2, we get 272, which is twice Jalpa's height, is the height of the tallest person in the world.
यहाँ पे जो भी आ रहा है आपको नोटबुक में Think लिखना of है, ओके? जो भी आ रहा है। Imagine. 1. Can that person pass through the door of your classroom without bending? 2. Will his head touch the roof of your house if he stands straight? Find out. 1. Who is the tallest in your family? 2. Who is the shortest in your family? 3. What is the difference between their heights? Inter-school sports meet. You all are familiar with the word sports meet. Many of you might have participated in the sports meet. In the sports meet, there are various games such as running, high jump, long jump, lemon and spoon, sack race, shot put, kabaddi, etc. Inter-school means with your schools, many other schools participate in these games. That is why it is called Inter-School Sports Meet. Now, here is a story of such an inter-school sports meet in which a running race is being held. Observe it carefully. You have to answer the questions that are asked here. This is a 100-meter race for the girls. Arundhati is near the finishing line. She is only 6 meters away from it. Rehana is behind her. Kavita and Uma are running behind Rehana. Come on, let us answer these questions. 1. How far is Rehana from Arundhati? 2. How far ahead is Rehana from Kavita and Uma? 3. How far are Kavita and Uma from the finishing line? देखो ये वाला लेसन में हमने ऑलरेडी ये वाले सॉन्ग्स किए हुए, बट यहाँ पे पिक्चर होगा ना तो आप एकदम इजीली सारी चीजें समझ पाओगे। कि जैसे ये अरुंधति है, ये फिनिशिंग लाइन में, तो वो फिनिशिंग लाइन से 6 मीटर पीछे है। उसके पीछे रेहाना, उमा एंड कविता। तो रेहाना अरुंधति से 3 सेंटीमीटर पीछे है और ये दोनों उमा और कविता रेहाना से 6 मीटर पीछे। तो ये पिक्चर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा कि हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति। तो रेहाना अरुंधति से कितनी फार है, कितनी दूर है, तो 3 मीटर। हमें इजीली आंसर पिक्चर देख के पता चल जाएगा। सेकंड है हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कविता एंड उमा। हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम, तो कविता और उमा से वो कितनी फार है, कितनी दूर है, तो यहाँ पे 6 मीटर हमें इजी पता चल जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है हाउ फार आर कविता एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। तो कविता एंड उमा कितने दूर है, तो क्या कैसे पता चलेगा, तो ये देखो 6 + 3 करोगे 9, 9 + 6 करोगे तो 15। देखो ये इधर यहाँ आपको लाइन दे ही दी है, तो 15 मीटर वो दोनों फार है, बट आपको लिखना कैसा है, 6 मीटर + 3 मीटर + 6 मीटर = 15 मीटर फार फ्रॉम फिनिशिंग लाइन। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लिखते जाना है, ओके। Solution. 1. Rehana is at a distance of 3 meters from Arundhati. 2. Rehana is 6 meters ahead from Kavita
and Uma. 3. Kavita and Uma are 15 meters away from the finishing line. Have you heard about 1500 meters and 3000 meters running race? Do you remember? 1 meter is equal to 100 centimeters. 1000 meters is equal to 1 kilometer. Half a kilometer is equal to 500 meters. Now, यहाँ पे देखो ये चीज भी आपको लिखते जाने 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। वैसे मैंने बोर्ड पे सारी चीजें लिखाई है, वन टाइम रिपीट होगा आपका और आप इजीली समझ भी पाओगे, लिखते जाना। ओके, we have to convert 1500 meters and 3000 meters to a kilometer. Here, 1500 meters means 1000 meter plus 500 meter. 1000 meter is equal to 1 kilometer and 500 meter is equal to half a kilometer. Then, 1 kilometer plus half a kilometer can be called 1.5 kilometer. 1000 meter is equal to 1 kilometer. ये सारी चीजें आपको इस तरह से लिखते जाना। 3000 meters means 1000 multiplied by 3, which is equal to 1 kilometer multiplied by 3, which equals to 3 kilometers. Thus, 3000 meters means 3 kilometers. One. 5000 meters is equal to how many kilometers? 2. 7000 meters is equal to how many kilometers? All these running races are short distance races. But you must have heard about the long distance race. This race is called marathon. In this race, the people have to run a distance of about 40 kilometers. So far, we have discussed only about the running race. But there are many other games. Out of these games, now we will discuss about long and high jump. You may wonder what is the difference between the long jump and the high jump. Let us find out. In long jump, it is the race of jumping as far as possible. आगे जो अरुंधति वाला जो पॉइंट था उसमें वो रेस कौन सी थी? रनिंग रेस थी कि कितने 100 मीटर की रेस होती है, जैसे मैराथन रेस का बताया कि वो 40 किलोमीटर की रेस होती है। यहाँ पे दूसरा जो होता है लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है। तो लॉन्ग जंप का मीनिंग क्या है? इन लॉन्ग जंप मतलब लॉन्ग जंप में होता क्या है? इन लॉन्ग जंप इट इज द रेस ऑफ जंपिंग एज फार एज पॉसिबल द वन हु जंप द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन द विनर। तो इस तरह का एक देखो यहाँ पे आप मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे आपको वो ग्राउंड भी दिखेगा, आप वो चीजें समझ पाओगे। तो इस तरह का एक पूरा उनका ग्राउंड होता है, वहाँ पे ये मिट्टी होती है जिसकी वजह से किसी को लगे नहीं, और वो यहाँ से जंप करेगा तो
यहाँ पे लिखा है इन लॉन्ग जंप इट इज द रेस ऑफ जंपिंग एज फार एज पॉसिबल द वन हु जंप द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इज द विनर। ओके, तो इस तरह से आपको ये चीजें आपको लिखते भी जाना है तो आप इजीली समझते जाओगे। कंटिन्यू करते हैं हम। The one who jumps the longest distance is the winner. In high jump, you have to jump as high as possible. The one who jumps highest is the winner. Here, the information about the Indian records and the world records for long jumps and high jumps is given. Example. Observe the table and find the solution for the given questions. 1. How many more centimeters should Chandrapal jump to equal the men's world record for high jump? Solution. The world record for high jump is 2 meters 45 centimeters, while Chandrapal's record is 2 meters 17 centimeters. Method 1. First, we will make 2 columns, one for meter and the other for centimeter as shown here. In the column of centimeters, we will write the value of centimeters, and in the column of meters, we will write the number representing meter. देखो, ऐसे वाला सम हमने प्रीवियस पीरियड में किया है कि हाउ मेनी मोर सेंटीमीटर्स शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल टू मैन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। यहाँ पे एक चार्ट दिया था, उसी के बेस पे हमने सम किया था। यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे कि मीटर और सेंटीमीटर की जैसे हम कॉलम बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे भी वही मेथड करनी है, बट ये सारी चीजें आपको लिखती जानी है। क्वेश्चन जो है द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाई जंप इज 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। जो हमें चार्ट में से देखना है, यहाँ पे किसका पूछा हुआ है? चंद्रपाल का। तो चंद्रपाल कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा चंद्रपाल। जो इंडियन रिकॉर्ड है वही वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है जेवियर एस का, तो वो कितना है? 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। तो वो चंद्रपाल से इसका ज्यादा है। तो डिफरेंस क्या है हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था कि हाउ मेनी मोर सेंटीमीटर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल टू मैक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगर वो और कितना ज्यादा जंप करता जिसकी वजह से उसका रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड से मैच हो जाता या उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड वो जीत पाता, तो वो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इजीली वो चीज पता चल जाएगी। तो ऐसे ही मीटर, तो देखो मीटर 2 मीटर 2 मीटर, तो यहाँ दोनों जगह पे 2 45 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर वाली कॉलम में ही सेंटीमीटर आना चाहिए, मीटर वाली कॉलम में ही मीटर लिखना चाहिए, तभी आपका आंसर प्रॉपर आ सकता है। कंटिन्यू करती हूँ मैं, आप देखते जाओ। We start the subtraction with the centimeter column first. 7 cannot be subtracted from 5. So, we will borrow 1 10 from 4 tens, and in place of 4, we will write 3, and in place of 5, we will write 15. 15 minus 7 is equal to 8, and 3 minus 1 is equal to 2. Similarly, 2 meters minus 2 meters is equal to 0. So, the answer is 28 centimeters. There is another method also. Method 2. We know 100 centimeters is equal to 1 meter. 2 meters 45 centimeters
is equal to 2 meters plus 45 centimeters, which is equal to 2 multiplied by 100 centimeters plus 45 centimeters, which is equal to 200 centimeters plus 45 centimeters, which is equal to 245 centimeters. 2 meters 17 centimeters is equal to 2 meters plus 17 centimeters, which is equal to 2 multiplied by 100 centimeters plus 17 centimeters, which is equal to 200 centimeters plus 17 centimeters, which is equal to 217 centimeters. Now, we will subtract 217 from 245. देखो यहाँ पे दूसरी मेथड भी बताइए, जैसे हम कॉलम बना के मीटर और सेंटीमीटर के कॉलम बना के सीधा सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते थे। यहाँ पे मेथड बताई गई, बट ये मेथड जो है वो थोड़ी लॉन्ग है और इसमें आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होगा, इसलिए वो मेथड बेस्ट है, बट ये मेथड भी आपको सीखनी चाहिए। ओके, कुछ भी नया हो तो ऐसा नहीं कि वो इजी है तो हम तो वही करेंगे, ये भी आप करोगे तो ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया हुआ है कि पहले तो जैसे हम कन्वर्ट करते हैं ना किलोमीटर को मीटर में या मीटर को किलोमीटर में, तो सेम हियर यहाँ पे आपको 1 मीटर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो यहाँ पे क्या है 1 मीटर एंड 45 इज इक्वल टू 2 मीटर, मतलब ये जो 2 मीटर है प्लस 45 सेंटीमीटर आपको करना है, तो 2 मीटर मल्टीप्लाई 100 ये वाले सम भी आपको आएंगे, बट ये वाले सम आपको सेकंड टर्म जो दिवाली के बाद स्टार्ट हो गई है तब ये वाले सम भी आपको आने ही वाले हैं, इसलिए ऐसा मत सोचो कि ये हमें करना नहीं है। ये वाली मेथड मैं आपको सेकंड टर्म में आपको कराऊंगी, जो दूसरा हमारा एक चैप्टर है उसमें ये वाला आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर प्लस 45, तो 2 मल्टीप्लाई 100 दैट मीन्स 200 सेंटीमीटर प्लस 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 245 सेंटीमीटर। तो हमने ये मीटर और सेंटीमीटर जो मिक्स था उसे हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर, तो उस तरह से भी हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। फिर जो 2 मीटर इसका है चंद्रपाल का 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर, तो उसको भी हम सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, तो 2 मीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, तो 2 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर प्लस 17, तो 217। अभी हमें फाइंड क्या करना था कि कितना मोर हाउ मेनी मोर सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल जंप, तो कितना जंप करना चाहिए, इसलिए फिर हमें 245 सेंटीमीटर माइनस 217 सेंटीमीटर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28 सेंटीमीटर। चाहे आप वो मेथड से करो या ये मेथड से करो, आंसर आपका सेम आना चाहिए 28 सेंटीमीटर। इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, इससे बेटर अब वो मेथड करना, ये मेथड भी सीखनी ज़रूरी है, इसलिए आपको नोटबुक में ये मेथड भी लिखनी ही है। ओके, ये मेथड आपको नोटबुक में लिखनी है। मैं कंटिन्यू करती हूँ। 245 minus 217 is equal to 28 centimeters. Thus, Chandrapal will have to jump 28 centimeters higher to equal the world record.